ভালকে ভিডিঅ'টো চাবা, বুজিব ট্ৰাই কৰিবা, দেন আই উইল এক্সপ্লেইন, মই বুজাই দিম। আগতে ভিডিঅ'টো চাই লোৱা। চ' ডিছকাছ হৈ আছে শ্বৰ্ট প্ৰব্লেম, হাউ টু ফাইণ্ড আউট শ্বৰ্ট প্ৰব্লেম ইউজিং DC পাৱাৰ ছাপ্লাই। অ'কে, মই প্লে কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, তোমালোকে চাব, শুনিবা। 4.3 वोल्टेज में सेट कर लिया हूं, ठीक है। और इसका पहले एक बार ऑफ कर लेता हूं, ये भी दिखाना, हाँ दोनों दिखाना। तो আচ্ছা, ইয়াতে তোমালোকে মই এটা বস্তু বুজাই দি আছো আগতে। দিছ ইজ দ্য DC পাৱাৰ ছাপ্লাই, এইটো হৈছে DC পাৱাৰ ছাপ্লাই। অ'কে, এণ্ড DC পাৱাৰ ছাপ্লাই তোমালোকে যদি ভালকে দেখা চাবা, যেনেকে মই তোমালোকক লাষ্ট টাইম দেখাইছিলো DC পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজ কেনেকৈ কৰে। চ' ইয়াতে এইটো এটা বেলেগ DC পাৱাৰ ছাপ্লাই, লাষ্ট টাইম যোনটো দেখাইছিলো এইটো বেলেগ এটা আছিলে, বাট একেই, মানে ছাপ্লাই ডিভাইচটো বেলেগ হয়, বাট কাম একেটাই হয়, ঠিক আছে। চ' DC পাৱাৰ ছাপ্লাই, সেইটোও DC পাৱাৰ ছাপ্লাই আছিলে, দিছ ওৱান ইজ অলছ' DC পাৱাৰ ছাপ্লাই। তো ইয়াতো দুই ধৰণৰ দুটা অপশ্যন থাকে, একেই এনি DC পাৱাৰ ছাপ্লাই তোমালোকে চাবা দুটা অপশ্যন থাকিব, এটা কাৰেণ্ট, দিছ ইজ কাৰেণ্ট, ইয়াতে ক্লিয়াৰ অহা নাই, বাট এইটো কাৰেণ্ট লিখা আছে। এণ্ড দিছ ইজ ভল্টেজ, ইয়াতে কাৰেণ্ট ৰিডিং শ্ব' কৰিব আৰু ইয়াতে ভল্টেজটো শ্ব' কৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল, যেতিয়া তুমি DC পাৱাৰ ছাপ্লাইটো তোমাৰ মোবাইল ফোনৰ লগত কানেক্ট কৰিবা, মানে ডাইৰেক্ট আমি চাৰ্কিট বৰ্ডটোৱে লৈ আছোঁ, যেতিয়া তোমাৰ DC পাৱাৰ ছাপ্লাইটো চাৰ্কিট বৰ্ডৰ লগত কানেক্ট কৰিবা, কানেক্ট কৰাৰ সময়ত তুমি ন'টিছ কৰিবা আমি DC পাৱাৰ ছাপ্লাইটোক মোবাইলৰ যিমান ৰিকুৱাৰ্ড ভল্টেজ আছে সেইমতে ছেট কৰি ল'ম। যেনেকৈ মই তোমালোকক লাষ্ট টাইম বুজাইছিলোঁ যে ইয়াৰ ভল্টেজটো কিমান 3.7 হয় মষ্ট অফ দি, ঠিক আছে। তো আমি মেক্সিমাম 4.2 এনেকৈ যাব পাৰোঁ। চ' সেইমতে তুমি DC পাৱাৰ ছাপ্লাইটোক আগতে অফ কৰি পেলাই, চৰি, মোবাইল ফোনটো কানেক্ট নকৰাকৈ সার্কিট বোর্ডটো, ইয়াতে সার্কিট বোর্ডটো আছে বর্তমান, সার্কিট বোর্ডটো কানেক্ট নকৰাকৈ আগতে ভল্টেজটো সেট কৰি ল'বা। তো যোনটো নেকি মই লাষ্ট টাইম শিকাইছোঁ তোমালোকক ভল্টেজ কেনেকৈ সেট কৰা হয় DC পাৱাৰ ছাপ্লাই। ইয়াতে ভল্টেজক সেট কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ এইবিলাক হেৰিবিলাক আছে, ছুইচেছবিলাক আছে, এইবিলাকৰ থ্ৰুৰে তুমি ভল্টেজটো সেট কৰি ল'বা, আপ ডাউন কৰিব পৰা। তো ইয়াতে অলৰেডি মষ্ট প্ৰবেবলি ভল্টেজটো সেট কৰি থোৱা আছে 4.2 মেক্সিমামলৈকে, ঠিক আছে। এণ্ড দেন সেট কৰাৰ পিছত তুমি মোবাইল ফোনটো সার্কিট বোর্ডত, মোবাইল ফোনের সার্কিট বোর্ডের লগত তুমি DC পাওয়ার সাপ্লাইটো কানেক্ট করিবা। তো কেনেকৈ কানেক্ট কৰা হ'ব এইটো ইয়াতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা এতিয়া। मैं इसका पॉजिटिव में पॉजिटिव को लगा देता हूं, यहाँ पे ये पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव में लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इसको नेगेटिव पिन को मैंने यहाँ पे नेगेटिव पिन में लगा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करना मतलब हो गया, मैंने बैटरी कनेक्टर कर बैटरी लगा दिया है। ये क्या काम कर रहा है, बैटरी का काम कर रहा है। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज आ रहा है, बैटरी का वोल्टेज मतलब ये DC पावर सप्लाई होके आ रहा है। मैं इसको ऑन कर दिया मतलब यहाँ पे 4.4 वोल्ट ये यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। তো ইয়াতে মই এটা বস্তু বুজাই দিওঁ, মই কৈছোঁ তোমালোকক 4.2, তো ইয়াতে 4.2ত এই মোবাইল ফোনটো তোমাৰ অলপ ইয়াতে বেছি ছাপ্লাই লাগি আছে। ইয়াতে যোনটো 4.4 ভল্টেজটো আমাৰ একচুৱেলি 4.2 ইকুইভেলেণ্টে হয় ইয়াতে, ঠিক আছে। গতিকে সেইকাৰণে মই এটা অলপ স্লাইটলি এমাউণ্টত বেছি দিছোঁ, তোমালোকে বাট 4.2লৈকে দিবা, তাতকৈ বেছি নিদিবা যেতিয়া DC পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজ কৰিবা, ঠিক আছে। মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। अगर ये फोन शॉर्ट होता, या तो फुल शॉर्ट होता या तो हाफ शॉर्ट होता, कुछ भी शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, करंट शो करेगा बिना ऑन किए। मैंने फोन को तो ऑन नहीं किया ना, जस्ट मैंने सप्लाई किया है, मैंने बैटरी कनेक्टर को लगाया, मतलब DC पावर सप्लाई को लगाया है और ऑन नहीं किया। बिना ऑन किए यहाँ पे करंट शो करना नहीं चाहिए, करंट रीडिंग दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये अच्छा फोन है इसलिए यहाँ पे करंट रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो कंसेप्ट ये हुआ कि बिना ऑन किए करंट रीडिंग शो करना नहीं चाहिए। करंट रीडिंग कब शो करना चाहिए, ऑन करने के बाद। अभी इस फोन पे ये हो गया मेरा पावर बटन, ये क्या हो गया, पावर बटन। मैं इसको पावर बटन को प्रेस करता हूं तो देखना यहाँ पे करंट रीडिंग आएगा, देखना। तो देखो मैं इसको प्रेस करता हूं, सर प्रॉपर्ली टच, ये प्रॉपर्ली टच नहीं हुआ शायद, देखता हूं कैसे होगा। ये है ना पावर बटन जी, थोड़ा खराब हो चुका है। मैंने एक बार चेक कर लेता हूं तो वोल्टेज आया कि नहीं। खराब नहीं है, अच्छा फोन, एक बार चेक कर लेता हूं। यहाँ पे ये वाला वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, 4.4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक अभी ये ठीक है, मैंने इसको प्रेस कर दिया तो इधर से करंट रीडिंग शो कर दिया। तो ऑन करने के बाद करंट रीडिंग आ रहा है, मतलब ये फोन ठीक है। ऑन करने के बाद करंट रीडिंग शो करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक शॉर्ट वाला फोन में चेक करता हूँ जो कि ऑलरेडी शॉर्ट है। जैसे हम लोग यहाँ पे कौन सा मिला था शॉर्ट, ये वाला था मिला था, ये हाफ शॉर्ट था, ये फुल शॉर्ट है। फुल शॉर्ट जब होता है तो करंट रीडिंग बहुत ज्यादा आता है। तो इस फोन में देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ये इसका नेगेटिव हो गया और नेगेटिव में नेगेटिव को लगा दिया और पॉजिटिव में इसको
पॉजिटिव लगा दिया और इसको मैं ऑन करता हूँ। देखना अभी सप्लाई, ये देखो क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। जी। मैं यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देखो ये मैं इसको मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो वोल्टेज कितना है 4.4 और मैं यहाँ पे टच करते ही देखो वोल्टेज क्या जा रहा है, टच करते ही तुम्हारा वोल्टेज आ रहा है क्या? नहीं, मेरा शायद लूज हुआ है कहीं पे। मतलब और एक बात, अगर लगाते ही तुम्हारा वोल्टेज 0 हो जा रहा है तो वो भी शॉर्ट का ही इंडिकेशन है, ठीक है। ये शॉर्ट था ना बोर्ड, नहीं नहीं ठीक है, वहां तक ठीक है। ये तो बोर्ड शॉर्ट था ना, जी। तो शॉर्ट दिखा रहा था। हाँ हाँ, जीरो है। हाँ, वो देखा ना वोल्टेज 0 हो गई। तो फुल शॉर्ट होने से क्या होता है, इस तरह से वोल्टेज तुम्हारा ड्रॉप हो जा रहा है, जी। ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है। या तो करंट रीडिंग आएगा या तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, और एक फोन था कहाँ पे, हाँ, तो हाँ इसमें दिखाओ, करंट शो कर रहा है तो समझना क्या है ये कि शॉर्ट। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? बिना ऑन किए अगर करंट शो कर रहा है तो मतलब समझना है कि यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है। फिर से मैं एक बार इसको लगाता हूँ यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो गया ना और ये इसका नेगेटिव हो गया। इसको मैं ऑन करता हूँ। अभी देखो बिना ऑन किए करंट, अगर यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो यहाँ, अच्छा, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये तो मेरा प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, मैंने तुम लोग को यहाँ पे दिखाया है ये सब कुछ चीज़ें, लेकिन अगला क्लास में मैं तुम लोग को इसे ऑनलाइन में ही एक अलग सा इस तरह से मैं रिकॉर्डिंग डायरेक्ट लाइव दिखाऊंगा। ये भी लाइव, ये भी तुम्हारा प्रैक्टिकल है लेकिन प्री रिकॉर्डेड वीडियो है क्लासरूम ट्रेनिंग का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बातें बोल दूँ अभी तुम लोगों को। यहाँ पे क्या समझाया गया है कि ये जो फ़ोन हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने चेक किया, वो क्या चेक किया, फ़ोन में शॉर्ट प्रॉब्लम है कि नहीं वो चेक किया गया यहाँ पे, ठीक है। किसी भी फ़ोन में शॉर्ट प्रॉब्लम है कि नहीं बाय द हेल्प ऑफ डीसी पावर सप्लाई कैसे चेक करना है, वही मेथड यहाँ पे सिखाया गया है। तो तुम लोगों ने देखा भी होगा, मैं फिर से एक बार चीज़ को थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या यहाँ पे तुमको चेक करना है। तो जैसे थोड़ा देर पहले तुम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेप्ट क्या है, तुम लोग कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लेना। जो भी मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट उसको नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि अभी देखो अभी तुम लोग तो फ्रेशर्स हो, बिगिनर्स हो, बाद में भूल सकते हो। इसीलिए अभी कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लेना, बाद में जब प्रैक्टिस करते रहोगे या अपने आप से दिमाग में सेट हो जाएगा तब इसको तुम लोग को देखने का जरूरत नहीं है, दिमाग सेट हो जाएगा, अपने अपनी मेमोरी में तुम्हारा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी डीसी पावर सप्लाई डिवाइस की मदद से किसी भी फ़ोन को हम लोग कनेक्ट करेंगे, देखो मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट करेंगे, मैं ऑन करने का बात नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान में सुन सा मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी डीसी पावर सप्लाई डिवाइस से जब हम लोग किसी भी फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कैसे करना है ये मैंने सब समझा दिया लास्ट क्लास में तुम लोगों को। तो जब भी किसी डीसी पावर सप्लाई डिवाइस को उसका वोल्टेज, उसमें बैटरी वोल्टेज को सेट करके जब मोबाइल फ़ोन का सर्किट बोर्ड के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे करंट जो रीडिंग, यहाँ पे जो अभी फिलहाल ये जो करंट सेक्शन है, करंट रीडिंग दिखाना नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट कनेक्ट करने का बात बोल रहा हूँ, फ़ोन को ऑन करने का बात नहीं बोल रहा हूँ। फ़ोन को जस्ट डीसी पावर सप्लाई डिवाइस के साथ जस्ट कनेक्ट करो। इसका पहले बैटरी का इसका पहले डीसी पावर सप्लाई डिवाइस का पहले वोल्टेज को सेट कर लो 3.7 के आसपास, और फिर उसको सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट करो। कनेक्ट करते ही यहाँ पे जो करंट रीडिंग है वो करंट रीडिंग यहाँ पे शो होना नहीं चाहिए, ध्यान में रखना। अगर करंट रीडिंग यहाँ पे शो हो गया बिना सर्किट बोर्ड मोबाइल फ़ोन को ऑन किए ही, अगर कनेक्ट करते ही यहाँ पे करंट रीडिंग दिखा रहा है तो तुमको समझना है कि इस फ़ोन में, जो भी फ़ोन हो उस फ़ोन में क्या है, शॉर्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एकदम आखिर में जो हम लोगों ने सर्किट बोर्ड यूज़ किया था, ये वाला सर्किट बोर्ड, ये जो सर्किट बोर्ड है इसमें क्या हुआ देखो, इसमें पहले तो हम लोगों ने बैटरी वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज सेट कर दिया गया 4.4 वोल्टेज सेट करने के बाद इस डीसी पावर सप्लाई के साथ इस सर्किट बोर्ड को कनेक्ट किया गया, ठीक है। और कनेक्ट करते ही क्या हुआ, बिना ऑन के ही जस्ट कनेक्ट करते ही यहाँ पे करंट रीडिंग दिखा रहा था। तो मतलब क्या है, इस सर्किट बोर्ड में शॉर्ट इशू है। मैं एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देख लो एक बार। शॉर्ट है, फिर से मैं एक बार इसको लगाता हूँ यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो गया ना और ये इसका नेगेटिव हो गया। इसको मैं ऑन करता हूँ। अभी देखो बिना ऑन के करंट,
तो देखा तुम लोगों ने यहाँ पे जस्ट इसको कनेक्ट करते ही सप्लाई डीसी पावर सप्लाई को डिवाइस को ऑन करते ही मोबाइल फ़ोन को सर्किट बोर्ड को हम लोगों ने ऑन नहीं किया, जस्ट कनेक्ट करते ही करंट रीडिंग दिखा रहा है। तो ये समझना है कि यहाँ पे शॉर्ट इशू है, यहाँ पे शॉर्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे थोड़ा देर पहले हम लोगों ने और एक फ़ोन चेक किया था, जहाँ पे तुम लोग देख लो, मैं ये एकदम थोड़ा उसको आगे लेके जाता हूँ, हाँ बैक करके लेके जाता हूँ। तो इस फ़ोन में देखो, इस फ़ोन में क्या केस हुआ देखो। तो ये फ़ोन में देखो, करंट रीडिंग शो कर दिया है। तो ऑन करने के जी हाँ थोड़ा खराब हो चुका है। जैसे इस फ़ोन में देखो, अभी इस फ़ोन में ये फ़ोन देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये कनेक्ट किया हुआ है डीसी पावर सप्लाई डिवाइस को इस सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, लेकिन फ़ोन को ऑन किया नहीं गया है, ठीक है, फ़ोन को ऑन किया नहीं गया है। तो इस हालत में ये यहाँ तक ये सही दिखा रहा है कि बिना ऑन किए ही जस्ट कनेक्ट किया, उसके बाद सर्किट बोर्ड को बिना ऑन किए ही यहाँ पे करंट रीडिंग देखो, नोटिस करो 0 है। तो मतलब ये होना चाहिए, अगर ये फ़ोन तुम्हारा यहाँ पे ओके है, यहाँ तक अगर कोई शॉर्ट नहीं है, तो यहाँ पे सर्किट बोर्ड को कनेक्ट करते ही कोई भी करंट रीडिंग आना नहीं चाहिए। सर्किट बोर्ड को डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते ही कोई भी करंट रीडिंग आना नहीं चाहिए। तो ये सही कंडीशन है। अगर करंट रीडिंग आ गया तो मतलब समझना है कि यहाँ पे क्या है, शॉर्ट इशू है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर ये फ़ोन ओके है, ये फ़ोन अगर सही है, तो होगा क्या, ये डीसी पावर सप्लाई डिवाइस को सर्किट बोर्ड के साथ जब कनेक्ट करोगे, पहले तो यहाँ पे करंट रीडिंग आना नहीं चाहिए, लेकिन कनेक्ट करने के बाद जब फ़ोन को ऑन किया जाएगा, फ़ोन को ऑन किया मतलब उसका पावर बटन को प्रेस करो, प्रेस करते ही फ़ोन ऑन हो जाएगा, और ऑन होते ही यहाँ पे करंट रीडिंग आना चाहिए। तो पॉइंट क्या है, बिना ऑन किए ही, बिना ऑन किए मतलब मोबाइल फोन टू ऑन নকৰাকে ইয়াতে কারেন্ট রিডিং আহিব নালাগে, বাট মোবাইল ফোন টু অন কৰাৰ পাছতহে ইয়াতে কারেন্ট रीडिंग আহিব লাগে। बिना ऑन किए मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे करंट रीडिंग शो करना नहीं चाहिए, और मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के बाद ही यहाँ पे करंट रीडिंग शो करना चाहिए। ये हो गया सही फ़ोन के लिए, ओके फ़ोन के लिए। तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक बार देखते हैं हम लोग, इस वीडियो को रीप्ले करके। अभी इस फोन पे ये हो गया मेरा पावर बटन, ये क्या हो गया, पावर बटन। मैं इसको पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो देखना यहाँ पे करंट रीडिंग आएगा, देखना। तो देखो मैं इसको प्रेस करता हूँ, सर प्रॉपर्ली टच, ये प्रॉपर्ली टच नहीं हुआ सर, नहीं एक बार मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आ रहा है अभी, ये ठीक है, मैंने इसको प्रेस कर दिया तो इधर से करंट रीडिंग शो कर दिया। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा, इस फोन में क्या हुआ, पावर बटन को प्रेस करते ही यहाँ पे करंट रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये फोन ओके है, सही है, मतलब ऑन करने के बाद करंट रीडिंग शो कर रहा है, बिना ऑन किए यहाँ पे करंट रीडिंग शो नहीं कर रहा था। सो ये फ़ोन सही है, यहाँ पे कोई शॉर्ट इशू नहीं है। और बीच में हम लोगों ने यहाँ पे और एक फ़ोन चेक किया था, जहाँ पे जो ये वाला फ़ोन था, ठीक है। इस फ़ोन में क्या हुआ, इस फ़ोन में क्या हुआ था, इस सर्किट में क्या हुआ था कि यहाँ पे करंट का तो कुछ सवाल ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, ये वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है, ड्रॉप टू 0, ग्राउंड में जा रहा है वोल्टेज। जब इसको लगाते ही यहाँ पे वोल्टेज जो 4.4 यहाँ पे जो वोल्टेज सेट किया गया था, इस सर्किट बोर्ड को लगाते ही यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इसको बोला जाता है लीकेज, या तो शॉर्ट, ये भी शॉर्ट ही बोल सकते हो, लेकिन इसको हम लोग लीकेज बोलेंगे। मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा वोल्टेज ग्राउंड में जा रहा है, इसको लीकेज भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये इशू आया नहीं है हम लोग का यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग एक तरह से शॉर्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी मैं डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जस्ट तुमको बोल रहा हूँ, करंट रीडिंग से जुड़ा हुआ बातें डिस्कस कर रहा हूँ। तो करंट रीडिंग को देख के तुमको पता कैसे चलेगा कि किसी फ़ोन में शॉर्ट इशू है या नहीं है। तो कॉन्सेप्ट एकदम आसान है, सिंपल सा बात है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था, मल्टीमीटर की मदद से किसी फ़ोन में फुल शॉर्ट प्रॉब्लम या तो हाफ शॉर्ट प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करना है। उसी चीज़ को आज हम लोगों ने डीसी पावर सप्लाई के साथ किसी फ़ोन में शॉर्ट है कि नहीं, उसको कैसे चेक करना है, करंट रीडिंग को देख करके, वो हम लोगों ने यहाँ पे आज का क्लास में देखा है। तो यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे तो मैंने जस्ट करंट रीडिंग के बारे में बोला, यहाँ पे फुल शॉट और हाफ शॉट इसके बारे में मैंने अभी तक बोला ही नहीं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसके बारे में आने वाले क्लासेस में, इसके बारे में और भी मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा करंट रीडिंग। अच्छा, करंट रीडिंग जो यहाँ पे आ रहा था, देखो
एक तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, ऑन करने के बाद करंट रीडिंग तो आएगा ही आएगा, सीधा सा बात है। यहाँ पे फोन को ऑन करने के बाद यहाँ पे करंट रीडिंग शो करेगा, वो नॉर्मल है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं है, वो फोन ऑन हो रहा है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ शॉर्ट फोन के बारे में। अगर किसी फोन में शॉर्ट इशू है तो एक तो बात क्या है, वो उस फोन को यहाँ पे कनेक्ट करते ही बिना ऑन किए यहाँ पे करंट रीडिंग शो करेगा, मतलब यहाँ पे शॉर्ट इशू है। अभी ये शॉर्ट मेजर शॉर्ट है कि माइनर शॉर्ट, वो एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब फुल शॉर्ट है कि हाफ शॉर्ट है, उसी को मेजर शॉर्ट और माइनर शॉर्ट बोल सकते हो। तो फुल शॉर्ट है कि हाफ शॉर्ट है वो पता कैसे चले, ये भी हम लोग करंट रीडिंग को देख करके पता कर सकते हैं। करंट रीडिंग कितना आ रहा है, करंट का रीडिंग कितना आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे फुल शॉर्ट है कि हाफ शॉर्ट है। मैं बाद में इसका एक प्रैक्टिकल तुम लोग को ऑनलाइन में दिखाऊंगा वीडियो में, लेकिन अभी जस्ट मैं बोल दे रहा हूँ तो तुम चीज़ को समझ लो, क्योंकि यहाँ पे तो ये वीडियो यहीं तक खत्म हो चुका है, यहाँ पे और नहीं है। तो वो जो मैं अगला क्लास में शायद मैं आने वाले क्लास में तुम लोग को दिखाऊंगा। तो मैं जस्ट ये बोल रहा था कि फुल शॉर्ट या तो हाफ शॉर्ट प्रॉब्लम को डीसी पावर सप्लाई की मदद से तुमको कैसे डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझो, करंट रीडिंग के ऊपर कैसे, करंट रीडिंग को देख के कैसे डिटेक्ट करना है फुल शॉर्ट है कि हाफ शॉर्ट है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को बोल के देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखना, जब अगर फुल शॉट प्रॉब्लम होगा मोबाइल फोन में, अगर तुम्हारा फुल शॉट या तो मेजर शॉट प्रॉब्लम होगा तो करंट रीडिंग जो होगा ना वो बहुत हाई आएगा, हाई करंट रीडिंग शो करेगा। और अगर माइनर शॉट है या तो हाफ शॉट है तो करंट रीडिंग आएगा लेकिन इतना हाई नहीं आएगा, मतलब लो करंट रीडिंग दिखाएगा। अच्छा, मैं ये जो बोल रहा हूँ करंट रीडिंग का बात, ये ऑन करने का बात का करंट का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिना ऑन किए ही जब करंट शो करता है उसका बात बोल रहा हूँ। तो बिना ऑन किए ही जब हाई करंट रीडिंग शो कर रहा है तो समझना है कि तुमको यहाँ पे क्या है, एक तरह से फुल शॉर्ट प्रॉब्लम है। और बिना ऑन किए ही जब लो करंट रीडिंग दिखाता है तो तुमको समझना है कि यहाँ पे हाफ शॉर्ट प्रॉब्लम है। अभी ये लो करंट रीडिंग कितना कितना रेटिंग का होगा या तो हाई करंट रीडिंग कितना रेटिंग का होगा, देखो इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, ये फोन टू फोन वेरी करता है। लेकिन मैं एक एवरेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुमको बोल सकता हूँ कि अगर करंट रीडिंग 10 या तो उससे कम आ रहा है, करंट रीडिंग 10 से कम, 10 से कम समझ लो, ठीक है, कितना है वो एग्जैक्ट बोला नहीं जा सकता, यहाँ पे फोन टू फोन ये वेरी करता है। तो मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ये भी तुम लोग जस्ट जान लेना कि जब करंट रीडिंग 10 से कम आ रहा हो तो तुमको समझना है कि यहाँ पे हाफ शॉर्ट या तो माइनर शॉर्ट प्रॉब्लम है। मतलब समझ लो कि करंट रीडिंग तुम्हारा कभी कभी 0.1, कभी कभी 0.2, 0.3, 0.4 इसे दिखाता रहता है, ठीक है। तो 10 से कम होना चाहिए, 10 से ऊपर नहीं। तो ये हम लोग एक तरह से एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे माइनर शॉर्ट प्रॉब्लम है या तो हाफ शॉर्ट प्रॉब्लम है। और जब करंट रीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, समझ लो 20 से ऊपर जा रहा है, मतलब 20, 30, 40 जो भी हो, ऊपर जितना भी जाए, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक तरह से मेजर शॉर्ट प्रॉब्लम है। तो करंट रीडिंग को देख करके बहुत सारा प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो, तुम्हारा मोबाइल फोन में सिर्फ शॉर्ट प्रॉब्लम ही नहीं, सॉफ्टवेयर इशू भी करंट रीडिंग के मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ेगा, डीसी पावर सप्लाई की मदद से हम लोग बहुत तरह का प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैं आने वाले क्लासेस में ये सब कुछ चीज़ तुम लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा, एक एक करके, एक दिन में नहीं। आज का क्लास में जस्ट मैंने डीसी पावर सप्लाई यूज़ करके जस्ट मोबाइल फ़ोन में शॉर्ट है कि नहीं वो कैसे पता करना है, वो यहाँ पे एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो को प्ले करके दिखाया है। ये क्लासरूम ट्रेनिंग का वीडियो है। तो मैं आने वाले क्लासेस में तुम लोगों को ये सब चीज़ें और भी दिखाऊंगा, और जब तुम क्लासरूम में आओगे, यहाँ पे फिजिकली आओगे, तब भी मैं यहाँ पे तुम लोग को फिजिकली भी दिखाऊंगा। अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो उसमें कोई बात नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। तो यहाँ पे ये सब हो गया बात है। तो अभी इससे रिगार्डिंग या तो इससे जुड़ा हुआ किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकता है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो, डाउट है तो पूछो अभी, यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ। किसी का नहीं है कोई सवाल? नहीं है सर। समझ में आ गया बात क्लियरली? तो हाँ सर। हाँ हाँ, और किसी का? बाकी सबका ठीक है? ठीक है सर। तो ठीक है, अच्छा बात है, एक ही बारे में तुम लोग को समझ में आ चुका है चीज़ें। तो और जब तक ये सब चीज़ें खुद भी नहीं करोगे तब तक थोड़ा तक कन्फ्यूजन रहेगा ही, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो खुद तो करने का तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है।
तो जब लॉकडाउन खुलेगा तब आके ये सब खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो जब चीज़ को समझ जाओगे तो प्रैक्टिकल करने में समय नहीं लगता है, क्योंकि मेजोरिटी टास्क तो हम लोग पहले ही कंफर्म कर रहे हैं। मेजर टॉपिक हम लोग का पहले ही जा रहा है। हम लोग समय जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे यहाँ पे हम लोग का समय, बहुत सारा समय हम लोग ऑनलाइन में हम लोग करके हमारा जो मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग में जो ज़्यादा समय लगने वाला है उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। तो इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा एक्सेस। तो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, बाकी जब तुम लोग आओगे ये सब चीज़ें को एक बार खुद भी प्रैक्टिकली अपने आप से भी इम्प्लीमेंट करके देखना। हो सके तो मैं एक बार फिर से सब चीज़ें रिपीट कर दूंगा, ठीक है? तब रिपीट करने में समय भी नहीं लगेगा। अभी जितना समय लग रहा है हर चीज़ को ब्रॉडली समझाना पड़ा था, अब इतना समय नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो जो भी हो, तो ये हो गया हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास में, लास्ट क्लास और आज का क्लास को मिला के हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन में एक तरह से शॉर्ट प्रॉब्लम को मतलब बिगिनर्स लेवल में कैसे फाइंड आउट करना है वो समझ लिया। लेकिन शॉर्ट प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ और भी क्लास होगा, और भी एडवांस्ड बातें होगा, और भी इससे जुड़ा हुआ हम लोग अलग अलग शॉर्ट प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ अलग अलग बातें डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है? लेकिन टाइम टू टाइम, एक साथ सब क्लास, एक साथ सब नहीं, एक ही साथ मतलब हर क्लास का शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं होता, वो बाद में आएगा थोड़ा। अभी फिर हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक में जाएंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे लौट के आएंगे शॉर्ट प्रॉब्लम में फिर से हम लोग। लेकिन ये बेसिक बात तो तुम लोग को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये तो हो चुका है। अच्छा, हम लोगों ने पावर ऑन सर्किट भी डिस्कस कर लिया, आई थिंक ये लास्ट क्लास में हो चुका है ना, पावर ऑन सर्किट। पावर ऑन सर्किट हुआ कि नहीं तुम लोगों का मोबाइल फ़ोन का? ना किसी को मिला नहीं? मेरे ख्याल से तो हो चुका है पावर ऑन सर्किट। पावर ऑन नहीं हुआ है सर। नहीं मिला है? क्लास हुआ नहीं क्या? नहीं सर, पावर ऑन सर्किट। पावर ऑन का नहीं हुआ है सर। अच्छा ठीक है, चलो नहीं हुआ तो मैं देखूंगा। तो उसके उसके अलावा मोबाइल फ़ोन में सेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेजर आईसीस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड आईसीस, मेजर आईसीस का काम क्या है, ये सब तो हो चुका है ना, ये सब बातें हो चुका है। तो अभी आने वाले क्लासेस में हाँ, आईसीस का हो हाँ, गया है। अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग सर्किट्स को डिस्कस करेंगे, एक एक सर्किट। जैसे ये हो गया पावर ऑन सर्किट, उसके बाद अलग अलग तरह का सर्किट है, चार्जिंग सर्किट हो गया, लाइट सर्किट हो गया, नेटवर्क का अलग अलग सर्किट होता है, ठीक है? ये सब हम लोग वन बाय वन सर्किट डिस्कस करेंगे। बीच में हम लोग 2-3 का सॉफ्टवेयर का भी क्लास करेंगे, और फाइनली हम लोग फ्लैशिंग का क्लास करेंगे। तो इस तरह से क्लासेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना होगा, बाकी अगला क्लास नेक्स्ट वीक को ही करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। अगला ओके क्लास हो सके तो मैं इसका एक खुद लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है? ओके और सर, एक बात पूछना था। हाँ बोलो। सर, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? इक्विपमेंट, अच्छा ठीक है, उसका एक मैं अलग सा क्लास कर दूंगा। चलो मैं समझा दूंगा क्या क्या टोटल इक्विपमेंट चाहिए, ओके सर। ठीक है? ओके, मुझे याद कर देना, जस्ट मैं बोल दूंगा तो। ओके सर।